Dare to dream, and all things become possible. And my guest is an example of that. Welcome to Baatein Ankahee with the very brave and popular Ankit Gupta. Ankit, welcome to Pinkvilla once again. Thank you so much. Ankit, you've come back to the city after 3 years? Almost 3 years. Yeah. Almost 3 years. How does it feel? अभी तो I honestly I can't even decide because मैं बॉम्बे आया एक दिन के बाद मैं फिर गोवा चला गया and then I came back yesterday only. So I haven't really been into this city, but बहुत इतने कम समय में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जी. एंड फॉर मी सडनली आई सी अ लॉट ऑफ पीपल विच आई नेवर सॉ इन चंडीगढ़ एक्सेप्ट ऑन माई सेट. वहाँ पे मुझे साथ में 120 या 150 लोग दिखते थे. अब यहाँ चंडीगढ़ में और कहीं इतने लोग नहीं दिखते थे. सडनली बॉम्बे आके आई just look out of the window and I see so many people. Yeah. So yeah, it's I'll take some time again to adjust. That's the madness of the city. Yes. Right? But I think बहुत जल्दी catch up भी हो जाता है. Yeah, I think the best part about Bombay is if it is for you, then ये आपको अपना बना ही लेती है. जी. You remember the first time you came to the city? Oh. What was the dream in your eyes? Yes, I remember. I think I came here I think 2011 or 2012. So that time I used to work in call centers. तो always dream तो था कि बॉम्बे जाना है, एक्टिंग करनी है. So I used to model in Delhi. Yeah. And I was working in call centers also. But then आपको अगर एक्टिंग करनी है तो बॉम्बे इज़ द प्लेस. सो आई थॉट कि चलो बॉम्बे चलते हैं. एंड मैं अब एक जॉब लेके बॉम्बे आया. आई वॉज हियर फॉर almost 1.5 months, and that was first time in my entire life that I felt homesick. I could not adjust in Bombay. There was the first time I actually cried. Oh. I was in my room and I cried at that. What am I doing? क्या मेरा मन ही नहीं लगा बॉम्बे में. And within 1.5 months I went back. मेरे भाई की शादी थी. I got a बहाना कि चल यार इसी बहाने में चले जाता हूँ. And then I thought कि मे बी मैं बॉम्बे में नहीं रहूँगा, बट हर 2-3 महीने में एक विजिट करके आई मीट पीपल, आई सी को क्या ऑडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है. सो आई वेंट बैक एंड आई डिड नॉट वांट टू कम बैक. 23rd December 2012, I guess that was the date. I came to Bombay again for 1 week. The same day I gave an audition for Balika Vadhu, which happened. Yeah. And then I stayed back. Wow. Then Bombay didn't let me go. How are those days, months like? I don't know. I mean, I thought मैं जॉब करूँगा और रात को जॉब करूँगा, दिन में ऑडिशन वगैरह अपने दूंगा, तो इट विल बी सॉर्टेड, एवरीथिंग विल बी वेरी इजी. बट आई केम हियर, आई वाज लाइक, एक तो पहले जॉब के बाद कुछ टाइम नहीं मिलता था. जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था वो ट्रैफिक में चला जाता था. एंड देन I got homesick also, and I just wanted to run away. Yeah. So I told my friends, यार मेरे से नहीं हो रहा, I'm going back, and probably I won't come back. But somebody told me once that अगर ये शहर तेरे लिए है, ये तुझे बुलाएगा. That's so true. Yeah. That's so true. And you came back. I came back. Balika Vadhu. But I know you don't like to call your struggle phase struggle. I know you like to use the word mehnat. Yeah. Which is so on point also. But I also believe that your fans should know the kind of efforts you've put in all these years to be what you are today. Which is why the next question, Ankit, that did you feel at any point in time that that this city is very, very tough to make it, and did you feel I might never make it? Yeah, of course. जब एक तो सबसे पहले मैं आया and I was looking for houses. I came from Noida. The living standard in Bombay are very high. घर का रेंट उस टाइम पे तो 20-25 हज़ार for 1 BHK was okay. I mean अभी तो बहुत ज़्यादा है. But उस टाइम भी 20-25 हज़ार for 1 BHK was like What? और वो भी छोटा सा 1 BHK. Like what? इतने तो मेरी पूरे महीने की सैलरी होगी यार. तो I thought यार ये तो मतलब नहीं होगा शायद, बहुत मुश्किल है. And plus traveling was very expensive.
And I remember there was a time when I started shooting for Balika Vadhu. जब इतने पैसे ऑफ कोर्स नहीं होते थे, 4,000 रुपये मिलते थे बालिका वधू में, वो भी महीने में 4-5 दिन हम लोग शूट करते थे. तो आई थॉट यार कि अभी बस से ट्रैवल करना शुरू करते, थोड़े पैसे बचाते. तो मैं बस में बैठा, जा रहा था, घर जा रहा था, तो somebody recognized. So, ओ आप बालिका वधू में आते हो ना? And I was like, shit. अब तो बस में नहीं बैठ सकते. पर अच्छी फीलिंग है वो. उस टाइम पे थोड़ी सी एम्बैरेसिंग थी कि यार मैं बस में बैठा हूँ. और नाउ बिकॉज आई वाज अ किड, 23-24 साल का बच्चा, क्या अभी नाउ आई अंडरस्टैंड. अभी तो ऑटो में घूमना, बस में घूमना, व्हाटएवर कन्वीनियंस फॉर यू डू दैट. तो यू इतने मैच्योर हो गए लाइफ में दैट वी डोंट डू एनीथिंग फॉर एनीबडी एल्स, वी डू एवरीथिंग फॉर आवरसेल्व्स, फॉर आवर कंफर्ट. मुझे ऑटो में कंफर्ट है, मैं ऑटो में जाऊँगा. कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, हाउ डज इट मैटर. तो उस टाइम पे लगा यार अब नहीं बस में जा सकते. एंड देयर हैव बीन टाइम्स जब मैं ऑडिशन छोड़ देता था बिकॉज ट्रैवलिंग के पैसे नहीं होते थे. तो फिर 2013 से थोड़ी लाइफ चेंज हुई व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग साडा हक. उसके बाद साडा हक बिकेम रेज अमंग्स टीनेजर्स. तो उस शो से मुझे काफ़ी पहचान मिली और लाइफ थोड़ी सी ट्रैक पे आई. फिर साडा हक ख़त्म हुआ, उसके बाद अप्स एंड डाउन्स थोड़े बहुत, कुछ जो भी जितने भी बाकी शोज थे ऑल्दो चले नहीं, बट आई थिंक आई ऑलवेज मेड गुड चॉइसेस. आई ऑलवेज डिड कैरेक्टर्स जो मेरे लिए सेटिस्फाइंग थे. Sure. Did you always want to be an actor? I always wanted to be an actor. बचपन से? I was in 8th standard. That time I decided I want to be an actor. Because जैसे हर बच्चे का I think होता है, आपने जो भी मूवी देखी है, जो भी कैरेक्टर देखा, you want to become like that. So शहनशाह मूवी देखी तो अमित सर की तरह 3-4 दिन घूमते हैं. कोई कुछ और देखा तो उसकी तरह घूमते हैं. So sometimes I wanted to become a doctor. Sometimes I wanted to become a pilot. Then 8th standard में I did a fashion show. अच्छा. And overnight I became popular in my school. Wow. I said यार ये बहुत अच्छा काम है. करना कुछ नहीं है, चलना है बस, और आप पॉपुलर भी हो जाते हो and people love you. ठीक है. तो मॉडल तो ठीक है, मॉडल की. देन थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो समझ आया कि मॉडल कि करियर इतना ज़्यादा लॉन्जेविटी नहीं होती उतनी. तो आई थॉट एक्टर. But I pursued modeling because that time a lot of models were turning into actors. Milind Soman, Dino Moria, and everything. So I thought कि यार modeling, is the easy step to get into acting. So why not start with modeling? घर वाले मान गए थे? घर वाले नहीं माने. घर वालों ने, my father, my mother, they wanted me to get into NDA. So उसका फॉर्म भी मुझे भरवाया. I said, seriously, NDA मैं कहाँ से करूँगा? But peer pressure में I had to do it. अच्छा. I took exam. Okay. But I was so sure कि होगा तो है नहीं, क्योंकि मैं कुछ करके नहीं आया हूँ. मैंने आते हुए अपना रोल नंबर फाड़ा, बस से बाहर फेंका. एंड वो जब 10-15 दिन बाद, उसका 1 महीने बाद उसका रिजल्ट आया, माय फादर, वेयर इज योर रोल नंबर, वो रिजल्ट चेक करना है. वो तो फाड़ के फेंक दिया. वो कब कहाँ है, किसको रोल नंबर याद है? तो मुझे पता नहीं है कि वो कभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज आई कुड नेवर चेक. ओह गॉड, मिस्ट्री ऑफ योर लाइफ. क्रेजी. सो फिर पेरेंट्स को बताया, आई वांट टू बिकम एन एक्टर, आई वांट टू गो टू बॉम्बे, like every lower middle class family, you get a job, you secure your life. I said नहीं, अपने लिए से तो नहीं होगा. So I said ठीक है, फिर you don't support me, I do whatever I want to do. I was 17 when I left my house. I went to Noida, started working in call centers. Starting की 2 जॉब में तो सैलरी भी नहीं मिली थी. I was just thrown out of company for nothing. Maybe I was not performing, but 2 जॉब में ऐसा हुआ. Then my mother called me and she was like, कुछ नहीं हो रहा है तो तू आ जाना, घर ही आ जा, you do something here. I said नहीं, अब तो नहीं होगा. फिर I took another job and that's the first time I got my salary, 10,000 rupees.
and I felt like I'm on the top of the world. Yeah. इतने पैसे कभी देखे नहीं ना लाइफ में, समझ नहीं आ रहा था 10,000 रुपये खर्च कैसे करूँ. Yeah. फिर वो हुआ and I started working in call centers. 2-2.5 साल बाद रियलाइज़ हुआ मैं आया किस लिए था, क्योंकि अभी पैसे आने लगे थे, पैसों की आदत पड़ गई थी जी. 2-2.5 साल बाद मैंने सोचा यार आया तो मैं एक्टिंग के लिए था, पैसे जोड़ के कुछ करने आया था ना. देन आई थॉट कि नाउ इट्स अ टाइम आई शुड टेक अ जॉब इन बॉम्बे एंड और मे बी आई स्टार्ट गेटिंग इनटू मॉडलिंग. सो दैट्स द फर्स्ट टाइम आई गॉट माय फोलियो डन. एंड देन पैसे कैसे आए उसके लिए? जॉब कर रहा था ना. अच्छा, तो उतना जमा हो गया था? उतना जमा हो गया. हाँ. So I uploaded that folio on ibibo.com. There was a site earlier, ibibo.com. तो उस पर हर महीने एक contest होता था, ibibo I hung. जी. So I won that contest. Then I got a contract with Elite Modeling Agency for 3 years. Then I started working with them. उनके साथ किया projects काफ़ी सारे ads किए, बहुत सारे hoarding shoots किए. Then when I thought कि यार अब हो गया मॉडलिंग, now I should go to Bombay. So आया बॉम्बे, मन नहीं लगा, वापस चला गया, फिर वापस आया तो तब से इधर ही रह गया. बट अंकित, 17 साल के लड़के को जब एक घर छोड़ के जाना पड़ता है, कितना डिफिकल्ट है? उस टाइम तो डिफिकल्ट लगा नहीं कुछ ऐसा, क्योंकि कुछ सोचा ही नहीं था ना. गुस्सा होता है एक आदमी, शायद परिवार से गुस्सा हो जाए उस वक्त कि यार आप सपोर्ट नहीं कर रहे. उस आदमी शायद उस टाइम पे आप खुद से नाराज़ हो जाओ. नहीं, गुस्सा नहीं था, एक्चुअली एक्साइटमेंट थी कि नया शहर होगा, नए लोग मिलेंगे, नया जॉब होगा, पैसे होंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूंगा. एंड आफ्टर दैट आई नेवर टुक मनी फ्रॉम माय फैमिली. तो इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग कि यार मैं खुद कुछ करूँगा. जो 10,000 रुपये पहले कमाए उससे क्या किया? उससे 3,000 रुपये घर का रेंट दिया और मॉम के लिए एक साड़ी खरीदी थी 1,500 रुपीज़ की. हाँ, अमेजिंग. बाकी तो अपने खर्चे. जब एक एक्टर बॉम्बे आता है ना, उसका सबसे पहला प्री रिक्विजिट होता है नेटवर्क करना. जाओ, लोगों से मिलो, बातें करो, पार्टीज करो, अननेसेसरी कई बार हैंग भी करना पड़ता है. आप हो एंटी सोशल, यू डोंट लाइक टू मीट सो मेनी पीपल ऑन अ रेगुलर बेसिस एक्सेप्ट योर ओन सर्कल. Was that a difficult time? It was very difficult for me. It is still difficult for me. I mean, yeah, what I feel that now I am understanding कि networking से होता है काम. But मेरा पहले thought process ये था कि I can audition for you. आप look देख लो, आप audition देख लो, आप काम देख लो. You like it, you give me work. Otherwise, I can't come and say यार hello sir, मैं actor हूँ, काम दे दो या कुछ हो जाए ऐसा. सो जो भी मुझे ऑडिशन जो भी बताता था, आई यूज्ड टू गो टू एवरी ऑडिशन. मैंने दिन में 6-6, 7-7 ऑडिशन दिए. अच्छा. देयर वाज अ टाइम मैं सुबह घर से बैग पैक करके निकल जाता था घर, और पूरे दिन ऑडिशन देके रात को घर में घुसता था. आई कैन डू दैट. या. बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट. एक तो मैं इंट्रोवर्ट, कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, इंग्लिश भी इतनी ज़्यादा अच्छी आती नहीं थी. सरकारी स्कूल में पढ़ा था तो कॉन्फिडेंस वैसे ही नहीं था. बट इतना पता था कि एक्टर बनना है. एक्टिंग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, वो भी नहीं पता था. तो इनिशियली तो मैं लोगों की एक्टिंग देख के उन्हीं की तरह कर देता था. नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग कैसे कैरेक्टर बिल्ड होता है, कैसे एक्टिंग ग्राफ होता है, कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन होती है. नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दैट. बट उस टाइम कुछ नहीं पता था. सो इट वाज सो डिफिकल्ट. और बहुत बार समझ नहीं आता था. आप किसी ऑडिशन में जाते हो, बोलते नॉट फिट. नॉट फिट क्यों, मतलब वाई? रीजंस देते थे? कोई कुछ रीज़न नहीं देता. अच्छा. अभी भी इतना नहीं होता है कि मैं पार्टी में जाके लोगों से मिल लूँ या कुछ हो जाए. बट जो भी मिल जाते हैं काम के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू, एक रिलेशनशिप बन जाता है. इट्स आई विल नॉट से कि मैं ये मे बी उनसे काम के लिए रिलेशनशिप बनाऊंगा, बट अभी अच्छा लगता है कुछ नए लोग मिले, उनकी लाइफ जर्नी पता चले, हाउ डिड दे डू व्हाटएवर दे डिड इन देयर लाइफ. तो थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है. सो दैट्स व्हाई आई लव टू टॉक टू पीपल. रिजेक्शंस लेना इजी था? हाँ, मैं कभी ये तो इनिशियली क्या हुआ, मैं जब बॉम्बे आया था तो हम तो लोअर मिडिल क्लास, छोटा शहर, जहाँ जो भी देखता था यार यू सो गुड लुकिंग, यू सो गुड लुकिंग, यू सो गुड लुकिंग. अपने को तो लगा हम ही हैं. हाँ. आगे बॉम्बे बैग उठा के जब यहाँ आए देखा टॉल 6'1", 6'2",
fair guys, muscular. उनको देख के लगा यार ये तो मतलब कंपटीशन, मुझे तो झूठ बोला गया बचपन से ये होते गुड लुकिंग. फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाता था, बट बहुत कंपटीशन था जी. बहुत. आई ऑलवेज बिलीव स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता. हर स्टेज पे एक अलग अलग स्ट्रगल होता है. इनफैक्ट लेट मी आस्क यू दिस, आफ्टर बालिका, आई थिंक बालिका वधू was 2012 for you, Yes. and सदाहक was 2014 for you. 14, अब दोनों शोज के बीच गैप होगा. Yeah. अब वो गैप थोड़ा सा डरावना हो जाता है कि आपने पहला शो तो कर लिया. वो गैप तो इतना डरावना था. आई टेल यू 2012 जब बालिका वधू हुआ तब एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी. कुछ पता भी नहीं होता था. एंड प्लस मेरे साथ सारे बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स, अनूप सोनी जी, सत्यजीत जी, सुरेखा सिकरी जी. तो उस टाइम पे तो मेरा एक्टिंग पे ध्यान भी नहीं होता था. मेरा सिर्फ ये होता था कि मैं लाइन बिना फंबल के बोल दूँ बस. या तो मेरी लाइन, एवरी टाइम आई यूज्ड टू प्रे यार आज लाइन ना आए, आज मेरे डायलॉग्स ना आए, मुझे पीछे खड़ा कर दे, आज डायलॉग्स ना आए. क्योंकि होता क्या था, एक्टिंग होती नहीं थी. एंड डायरेक्टर मेरे से बहुत सड़े रहते थे. उनको मैं समझ ही नहीं आता था. वो मेरे शॉट भी नहीं लेते थे. सुबह मेरा मास्टर लगाते थे सबके साथ, सबके क्लोजेस ले लेते थे. मेरा रात को 8:30-9 बजे क्लोज होता था, वो भी उनके असिस्टेंट लेते थे. सो उस शो में माय कॉन्फिडेंस पूरा नीचे चला गया. क्लियरली. एंड उस टाइम पे आई थॉट यार अपने बस की नहीं एक्टिंग, छोड़ देता हूँ. मैं एड्स वैड्स कर लूँगा, कुछ जॉब वॉब कर लूँगा, एंड ठीक है ना, हो जाएगा जो भी है, थोड़ा बहुत मॉडलिंग से हो जाएगा. तो एक्टिंग बिल्कुल करने का, दैट्स वाई 2 साल का वो गैप था उधर. बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू एक्ट. I only wanted to do modeling or ads because of what I saw on that set. So उसके बाद मेरे 2-3 बहुत बड़े से ads बहुत famous हो गए. And then I got a call from production house कि ऐसे we are making a show for Channel V. It's a youth based show and you want to audition for it? एक्टिंग तो आती नहीं है. क्या करूँ. मैंने बोला यार देखो मैं आके ऑडिशन दे दूँगा, बट मेरे से ज़्यादा उम्मीद मत रखना आप लोग. बोला आ जाओ. फिर ऑडिशन दिया एंड लकीली वो हो गया. एंड फिर उस शो में परम था, हर्षिता थी. मेरा ट्रैक 2 महीने बाद शुरू हुआ. आई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट सिलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. एंड परम एंड हर्षिता का ट्रैक शुरू हो गया था. मेरा 3 महीने बाद ट्रैक शुरू हुआ था. सो आई यूज्ड टू वॉच देम कि यार ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो उनको देख के मैंने एक्टिंग सीखी. और फिर मैं जब सेट पे भी गया तो दे वर सो गुड. आई वाज लाइक यार हाँ ये ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं. तो आई यूज्ड टू कॉपी थोड़ा बहुत इधर उधर से जो भी देखा वो कर दिया. फिर बाद में समझ आने लगा कि अब ठीक है एक्टिंग ऐसे. और फिर उसके बाद वो शो इतना बड़ा हिट हो गया. एंड that was the first time I actually got recognition as an actor. So उससे बहुत कॉन्फिडेंस आया. अब लगा कि अब मैं कर लूँगा. जी. कॉल सेंटर क्यों चूज़ किया आपने काम करने के लिए? Because I was in 12th. I finished my 12th. I was 17. I was in my college first year. I did not want to go to college. 12th pass को और कोई जॉब में. There was a time when I went to McDonald's also, but I was rejected because I was underage. कॉल सेंटर वॉज द ओनली प्लेस जहाँ पे आपको डिग्री नहीं चाहिए थी आपको, बिकॉज दैट टाइम इट वॉज बूमिंग. आपको सिर्फ उनको काम करने वाले लोग चाहिए थे. तो उनको एज नहीं से मैटर नहीं था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. उनको एजुकेशन से कोई मैटर नहीं करता था. आप बोल सकते हो, कॉल पे हैंडल कर सकते हो लोगों को, बस आप आ जाओ. लेकिन कई बार हम जब नई चीज़ ट्राई करते हैं या नई जगह पे जाते हैं तो आसपास के लोग कई बार फ़ायदा भी उठाते हैं. बिल्कुल. जब आप बॉम्बे आए तब ये सब हुआ, लोगों ने गलत रास्ते दिखाए. कास्टिंग काउचेस एक्सट्रीमली पॉपुलर इन आवर बिजनेस. डिड ऑल ऑफ दैट हैपन? कास्टिंग काउचेस ऑफ कोर्स. आई मीन आई थिंक बॉम्बे का हर एक्टर हैज़ गॉन थ्रू दिस. फ़ायदा उठाने वाला ऐसा कोई फ़ायदा नहीं उठाने वाला कोई मिला. बिकॉज जब मैं यहाँ आया 1-2 लोगों को मैं जानता था. सो दे रियली हेल्प्ड मी. अच्छा, यू न्यू पीपल. I had a couple of friends staying here. So I came and I stayed with them. And then when Balika thing happened, so I stayed with them only. And I stayed with them for a very long time.
Plus, I think I've been so lucky that I always found such good people in my life. Uh, my landlord in Bombay, he was such a nice person. I stayed in that house for almost 8 years. And when lockdown happened, I was not working for 3 years because that phase came and lockdown happened. I had no money. I couldn't ask anything from my family. Uh, that guy, during the lockdown, he did not even ask for a single rupee. For 10 months, I did not pay him at all. And then right after lockdown, I had to leave the house because my building went into redevelopment. So he said, "It's okay, Ankit, I understand. It's all right. When you have money, give me." How amazing is that? I've always found wonderful people in my life. Yeah. That is amazing. That is actually so amazing. You had struggle of 3 years during lockdown? Before lockdown. 2018, I think I did my last show, and I wasn't working till... I did a couple of web shows, but the transition, again, it is always difficult making transition from TV to web. I did a couple of shows, but good shows, but then you go to a different stream, they treat you as a newcomer. Yeah. So you did OTT. Yeah. So that happened. And 2021, ऐसा नहीं है कि मुझे काम नहीं मिला. During that 3 years, I signed 6 shows, 2 web shows. I signed 1 film. I went for the shooting, and nothing started. Nothing at all took off. Because of the lockdown? Not because of lockdown. कहीं पे वो शो बंद हो जाता है, कहीं पे फिल्म के लिए मैं गया रांची, एक हफ्ते में वहाँ रहा. कल से शूट होगा सर, परसों से शूट होगा, फिर डायरेक्टर कल आएगा, परसों आएगा, मीटिंग होगी. एक हफ्ता हो गया. उसके बाद प्रोडक्शन गाय केम टू मी इन द मॉर्निंग एंड सेड, सर एक प्रॉब्लम हो गई. आई सेड व्हाट, पिक्चर बंद? ही सेड, यू वर एक्सपेक्टिंग दैट? नो, बट एक प्रॉब्लम हो गई, शूटिंग स्टार्ट नहीं हो रही. दिस इज, एंड आई हैव बीन सीइंग दिस पैटर्न फॉर लास्ट 3 years ना. तो आई हैड दिस फीलिंग कि अब ये यही बोलेगा कि पिक्चर बंद हो गई. ही सेड, सर वो प्रोड्यूसर भाग गया. कितना हार्ट ब्रेकिंग है ये कैसे? हाउ डू यू फैथम? यू आर ऑन द सेट, यू आर गेटिंग रेडी, यू आर रेडी फॉर अ शॉट एंड समबडी कम्स एंड सेज घर चले जाओ, शूटिंग नहीं हुई. या इट हैपेंड टू मी अ लॉट ऑफ टाइम्स. सी, जब लॉकडाउन लगा 2020 मार्च 17th मार्च 2020 और 18 मार्च 2020 फिल्म सिटी लॉकडाउन हो गया था जी. That 18 morning, March 2020. That morning, I woke up in the morning. I got ready. That was the first day of my shoot. I was going for there was a show called Meri Gudiya on Star Bharat. And I was supposed to do that. 18 March, I got ready in the morning. I was just leaving for the shoot. I got a call. Sir, ab matao, Film City lockdown ho gaya. And during lockdown, the show was shut. So this happened with me in 3 years. I'm telling you, I signed 6 shows. किसी शो में वो जो ट्रैक आना था वो नहीं आया, किसी शो में स्टोरी लाइन चेंज हो गई, किसी शो में उन लोगों को लीप लेना था, उन्होंने वो लीप नहीं लिया. आफ्टर साइनिंग किसी के मैं शूट पे जाके वापस आ गया. हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? या आई ऑलवेज बिलीव जो चीज़ आपके लिए होती है ना वो आप ही को मिलेगी. जो चीज़ आपके लिए नहीं है वो आप चाहे कितनी कोशिश कर लो. पर अंकित, ये आज बोलना आसान है, उस वक्त कैसा आदमी डील करेगा इस चीज़ से? बट आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन दिस काम पर्सन. ऑफ कोर्स थोड़ा सा बुरा लगता है, बट देन आई से इट्स ओके, मे बी ही हैड अ बिगर प्लान्स फॉर मी. यू शुड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स or from the God. You should not ask, maybe I want this today. I say I want this. Maybe he has a bigger plan for me. He wants to give me that. Makes sense. So if you're okay to settle on this, he will say ठीक है ले ले, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो तेरे लिए बड़ा सोच के रखा ना, अगर तू नहीं वेट कर सकता तो ठीक है. What an amazing thing to say. Yeah. That makes sense. It does. You mentioned casting couch. हुआ आपके साथ भी? I've met such people that I can't even tell you. There have been people, they call you to their office, then they tell you a lot of stories. They take a lot of names. इसको मैंने बनाया, उसको मैंने लॉन्च किया, ये हुआ, वो हुआ, and they, to convince you, they say anything. Everybody does it,
Ankit, everybody does it. You want to work in this industry? This is how it's done. देख ले, तू अभी नहीं करेगा, 2-3 साल बाद आएगा, फिर मेरे को बोलेगा अब कर लो, फिर मैं नहीं करूँगा. वाह, थैंक यू. You're gonna waste your 2-3 years. देख ले, सोच ले, अभी कर ले और फिर काम करना शुरू कर दे. नहीं, अपने से नहीं होगा. तब सर मतलब होगा ही नहीं तो मैं मतलब मेरे को 1% भी फीलिंग नहीं आएगी तो मैं क्या करूँगा. So I've met such people. They just I don't know if I should say this on camera or not, but they just go down on their knees and they will tell you, just let me touch you. Just let me touch you. That's it. Nothing. But this is very rampant, no, in our business. Even today, what to do about this? There's no shortcut in life. Maybe if you do this, and it is for all the actors, or not just the actors. I think it's ये जो है compromise. It's everywhere. It's in every industry. Yeah. Corporate. I've worked in corporate. I've seen there. Yeah. It is a lot more there. But because ये इंडस्ट्री बहुत लाइमलाइट में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसलिए यहाँ की चीज़ें बाहर आ जाती हैं, बाहर की चीज़ें नहीं आती हैं. जी. But it is everywhere. And I always say that यार, there's no shortcut. If it is meant for you, it will happen. Yeah. Just have that faith. Maybe आपको 2-3 साल थोड़ा सा टाइम आपको बहुत ख़राब लगेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज होगा, बट इट इज़ टू मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड टू मेक यू रियलाइज. नाउ आई अंडरस्टैंड दिस, दैट डिफिकल्ट टाइम इज टू मेक यू रियलाइज व्हेन यू बिकम समथिंग, how should you behave with people. Yeah, that makes sense. Yeah. Maybe if I get everything in first attempt, I will take everybody for granted. Yeah. या maybe मेरे पेरेंट्स के पास बहुत पैसे होते तो I would have been an alcoholic. सारे टाइम शराब पी के पड़े रहता, क्योंकि मुझे क्या फ़र्क पड़ना है. Yeah. Makes sense. पर गलत है ये, तो जहाँ भी हो रहा है वहाँ रुकना चाहिए. Why you so antisocial? Yeah, because I like my own. I like my own space. There were very few people I can connect with, and I'm sure almost सभी को आता होगा, वो एक vibe आती है. When I talk to someone, I get that vibe. यार इससे मैं बात कर सकता हूँ. There are so many people जिनसे मुझे इतनी ख़राब vibe आती है. They've done nothing wrong to me, nothing at all. But I can't even say hi to them. Connect नहीं हो पा रहा. Connect ही नहीं हो पाता. उनसे मैं hi भी नहीं कर सकता. And I can't force myself to be just nice to somebody because just for the social thing. Yeah. बहुत मुश्किल हो जाता. And it shows on my face. If I don't like somebody, it shows on my face. Yeah. Last time when Priyanka was on this seat, she said, Ankit पहले बिल्कुल expressive नहीं था, अब थोड़ा खुल रहा है. अब मैं थोड़ा मुझे टाइम लगता है ना. I connect with people and then थोड़ा सा as a person आप change भी होते हो. पहले मुझे लगता था that if I do not have anybody in my life, it's okay. It's okay. But now I'm realizing if you have somebody in your life, if you have your friends with you, life becomes easier. Yeah. Yeah. And that I realized it took me a lot of time, but thankfully I realized that, and I will say this to everyone that maybe just have a couple of people in your life, but have somebody, who can you trust blindly? Yeah. And I've been so fortunate in this matter. So fortunate. I always say this. I've got so much of love. I've found such wonderful people in my life. And I say that यार मुझे पता नहीं है मैंने इस प्यार के लिए क्या किया लाइफ में. Because मुझे नहीं लगता मैं कभी एक I was very rude. अच्छा? Yeah, मतलब मुझे अगर if I don't like something, I will say like, I won't sugarcoat it. I will like, you don't know it. Shit. Khatam. But I don't know what I did for this love. I have no idea. You deserve every bit of it, and there has to be a reason behind why you're getting it. So I'm sure you deserve it. Maybe. I don't know. Yeah. Did Priyanka make you realize that you need good people around you? She made me realize that it is okay to be expressive. It is okay to open up to people. And not everybody here to make fun of you or to take advantage of you. Ji. There are people who want you in their life unconditionally. So when you get that kind of people, I think you should just express
and that's how your bond can, become stronger. Yeah. Does these rumors impact you or your equation with her about your dating? And No, all we that? laugh at it. We read and we laugh at it. And it still goes on. Yeah. It still goes on very, मतलब आज ही मैं Google कर रहा था आपको for the research and I saw so many articles still there. It happens every day. ये हमने भी कल ही पढ़ा after that birthday thing. So we were laughing at it. We were like, and I tell you, a lot of portals are like that. They've written that Ankit celebrates his birthday with his girlfriend Priyanka. अच्छा. But why would you say that? Have you got any confirmation from us? Yeah. Or have we given any statement like that? Yeah. You can't just assume. You can say rumor girlfriend, or you can say good friend, or you can say best buddy, but you can't say best friend, or you can't say girlfriend. Correct. But then sometimes this impacts and my worry as a journalist is that sometimes if you use these words lightly, it can impact two people's relationship. Of course, it can. Maybe there's nothing like that. Yeah. Maybe there is, but they don't want to show it. Yeah? Makes sense. So I see, but I think this is what happens. दो लोगों का relationship ना कोई भी हो, दोस्ती हो, अच्छा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, दोनों लोगों का रिलेशनशिप में हमेशा तीसरे की वजह से खराब होता है. So that's why we never allow any third person to come in between us. वैसे भी एक सेलिब्रिटी की लाइफ में तो बहुत तीसरे लोग होते हैं, बहुत सारे भर के आ जाते हैं. बिल्कुल. So what's happening next? Yeah, I always try मेरा जो भी next project हो, it should be very different from the last one at least. तो जो भी character हो should be very different. If you see my graph, my first Sadda Haq was a college student, and second I did Begusarai, which was a very grey character. Yeah. He was a womanizer and only listens to his mother. Then I did कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, जिसमें एक सीधा साधा सा very cute सा happy go lucky type लड़का था. Then I did कुंडली भाग्य, उसमें I was proper negative. तो I always try कि अलग अलग illegal I did, उसमें I was playing a MCP. So I always try कि मेरा जो नया रोल हो वो at least पुराने वाले से बहुत different हो. जी. Then that's how you see the change. Otherwise usually TV पे क्या होता है, same characters होते हैं. Yeah. तो it is so difficult to figure out यार फिर क्या होता है, फिर लोग बोलते हैं यार ये तो same ही करता है. Now I want to do यार something जो मेरा कैनवस थोड़ा सा बड़ा करे. मेरा जो वेरिएशन है, जो क्राफ्ट का ग्राफ है वो थोड़ा और ऊपर जाए. सम पावरफुल रोल. I तो इंटरव्यू में देखा you want to play Aladdin, you want to play Shiva, and you want to play James Bond. Yeah, you won't believe when I got to know that now they're casting for James Bond. I tried to search everybody on Instagram. I tried to search producers. I tried to search casting director. And unfortunately, I did not find anyone on Instagram. Otherwise, I would have messaged them. Oh, lovely. But you should keep trying. Why not? Yeah. I mean, चाहेंगे तो मिलेगा. Yeah, I think I would be a you'll be perfect. James Bond. Yeah. By this interview also, I'm hoping now your fans will be bombarding the casting director of this Please person. do that. जुनूनियत का sudden abrupt end affect हुआ? I think थोड़ा सा हुआ, but channel is the boss. It is not the show. The only sad part about this now, show is not shutting off because it's not doing well. The show is doing well. Last week it was number 2 show on Colors, and I'm sure this week का जो last week का TRP आएगा, it's going to be more than that. And we had maximum time spent on entire channel. We had 20 plus minutes का time spent. No other show has it. It got shut off because of the there has been a lot of changes in the channel. Yeah. So I think every person, every team, they come with a different mindset. Maybe they're looking at something else. Yeah. Maybe they want to take this channel into some other direction. So that's why it happened. Upsetting? It was upsetting. But I get intuitions, I get signs. I don't know. Show बंद होने से 2 हफ्ते पहले I was getting a call of who? Movers and Packers. अच्छा.
तो मुझे पिछले 3 साल में जब से मैं चंडीगढ़ में मुझे कभी मूवर्स एंड पैकर्स का कॉल नहीं आया. सडनली आउट ऑफ द ब्लू आई गेट दिस कॉल फ्रॉम मूवर्स एंड पैकर्स एंड आई वाज टॉकिंग टू माय डायरेक्टर, सर ये मूवर्स एंड पैकर्स का कॉल आ रहा है, कुछ है हो रहा है क्या? बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तू ज़्यादा सोच रहा है. ऐसा मैं सोच नहीं रहा हूँ, मुझे देख के ऐसा एकदम से सडनली पहला थॉट यही आया दिमाग में, मूवर्स एंड पैकर्स क्यों कॉल कर रहा है. फिर उसके 2-3 दिन बाद वी शॉट अ प्रोमो जहाँ पे मैं इलाई की मांग भर देता हूँ एंड वी गेट मैरिड होना. जैसे ही वो आया आई सेड सर अब तो बता दो या तो लीप हो रहा है या शो बंद हो रहा है, कुछ तो है. जी सेड नहीं रुक जा, 2 दिन रुक जा, फिर सब क्लियर हो जाएगा. 2-3 दिन बाद सरगुन केम एंड शी सेड इट्स हैपनिंग. Thank you so much, Ankit. I had a great conversation. I hope you had a good time too. Thank you so much. Thank you so much for opening up. Thank you. Thank you.